everyone and welcome to my channel Creative Space. So आज हमारे साथ है बहुत ही creative person, who is an artist who is a founder of an animation supplements. Recently वो feature हुई थी Disney के Super Makers show में as one of super maker, जो बहुत ही बड़ी बात है. So, without any further ado, thank you, Smita, for coming and collaborating with me for my channel and, doing this vlog, which is very close to my heart also. So, thank you and please introduce yourself. Hi, everyone. I'm Smita. Thank you, Neha, for giving me this opportunity at your Creative Space platform. This is something really you are doing very cool thing, and I think many people will benefit from this. Let me introduce myself. I'm Smita, founder and mentor of Animation Supplement Startup. I conduct different workshops. I conduct courses in art and craft, computer graphics, programming, and we do a lot of events for the kids, children, and many more things. So, but our forte is basically to provide animation training, give information about the animation, what's happening in the industry. So we do introduce and we do conduct media stories from animation field. So this is what about I have to say about myself. Yeah, it is a vast platform. Animation बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. मैंने खुद सीखा है तो मुझे पता है what is animation. And क्यों मैंने ये टॉपिक के ऊपर मैं व्लॉग कर रही हूँ, अवेयरनेस हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं टू द व्यूअर्स, क्योंकि हम एनिमेशन हर जगह देखते हैं. पेपर एनिमेशन होता है, क्ले एनिमेशन होता है, टीवी खोलो एनिमेशन है, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीवेयर व्हाटएवर जो आप देखते हो वो सब एनिमेशन है. 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन. सो स्मिता जी, इन अ नटशेल अगर आपको बताना है, सो स्मिता प्लीज टेल व्हाट इज एनिमेशन इन अ नटशेल. Okay, see, basically, my audience is like children and adults both. So, in simple terms, animation means perception of motion. It's also called as illusion. Okay, so you recognize illusion in such a way, so understand that how the motion is taking place. Okay, when we talk about this in technical terms, we talk about this is called as persistence of vision. Okay, so in this some sequence of images are played at particular speed of the second, and it give you illusion of animation. So basically to feel the motion on the screen, you can call it as an animation. We watch videos, that also is like a sequence of images running on particular seconds. So instead of still picture, we see some movements. Okay, so that's called as animation. Yes, correct. After this question, my next question would be, Smita, what are the skills that a child develops once he learns या starts making these animation projects? क्या ऐसे skills develop होते हैं बच्चों में जो आपके experience के हिसाब से आपने देखे हैं? देखो, बच्चों में ना बच्चे इमेजिनेशन करते हैं और इमेजिनेशन में वो स्टोरीज फॉर्म करते हैं, इवेंट्स फील करते हैं, कलर्स, शेप्स और कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट को फील करते हैं. तो इमेजिनेशन इज समथिंग, एक स्किल होता है बच्चों में जो बचपन से डेवलप होता है. तो जब बच्चे स्टोरी रीड करते हैं, ओके, बहुत स्टोरी टेलिंग पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है बच्चों को. दादी नानी हर कोई स्टोरी सुनाता है उनको. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उनका इमेजिनेशन डेवलप करना. और जब उनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है तो वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव थिंकिंग को, उनके डिसीजन पावर्स को, उनके सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करती है. तो इस वजह से ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay, so Smita, my next question would be, what are the top 3 common concerns
फ्रॉम अ पेरेंट और अ चाइल्ड while अंडरस्टैंडिंग एनिमेशन, जब वो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या कंसर्न्स आप देखते हैं कॉमनली? पहली बात तो उनको सब्जेक्ट एज अ एनिमेशन क्या है वो इतना क्लियर नहीं होता। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ दे अंडरस्टैंड कि जो कार्टून आते हैं वो एनिमेशन है सिर्फ, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रोसेस है उसका। दूसरा कंसर्न ये है कि अभी तक इतना इस पे फोकस नहीं किया गया है कि एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जो स्टोरी टेलिंग के लिए बच्चों को सिखाया जा सकता है, जिससे कि वो अपने मन की जो बातें हैं या फिर जो अपने इमेजिनेशन है, एक्सप्रेशंस है, उसको वो पेपर पे उतार सकते हैं और वो दूसरों को भी दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा कंसर्न है। तीसरा कंसर्न ये है कि अभी ये जो सब्जेक्ट है एनिमेशन, इसको खुद ही इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। ओके, जैसे हम आर्ट स्टडी करते हैं, साइंस स्टडी करते हैं, उसमें हम फिजिक्स में मोशन स्टडी करते हैं, पर एक्चुअली अगर हम एनिमेशन की नॉलेज बच्चों को दे तो फिजिक्स में जो प्रिंसिपल्स है कि मोशन कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, ओके, एनिमेशन के माध्यम से हम उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और बच्चों को अगर एनिमेशन क्रिएट करने का नॉलेज होगा तो वो साइंस को भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे ये फील होता है कि ये 3 कंसर्न है। और वो स्पेशली बच्चों को उसमें एडवांटेज ये होता है कि वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो स्टिल पिक्चर्स क्लिक करके वीडियो और स्टॉप मोशन पिक्चर्स बना सकते हैं, जिसको वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी ज्योग्राफी के भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे सिर्फ अगर वो एनिमेशन के थ्रू करके समझे तो वो शायद उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि तो एनिमेशन सिर्फ फन ही नहीं है, एनिमेशन नॉलेज से भी जुड़ा हुआ है और ये आपको डायमेंशंस, मोशन, मूवमेंट और ड्राइंग सब चीज की समझ देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये कंसर्न पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है और बच्चों को तो आना चाहिए। यस यस, आई कंप्लीटली अग्री। आपने बहुत इन नटशेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कवर किए और आपने बताया है। इवन हाल ही में जो स्टेम जो इतना पॉपुलर हो रहा है, स्टेम एनिमेशन या स्टीम है, जहाँ पे मैथ्स अप्लाइड होता है, सारी चीजें अप्लाइड होते हैं, ये भी एनिमेशन ही है। सो आपको बेसिक, तो आपको बेसिक, तो इट्स बेसिकली एडुटेनमेंट, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, जिसके वजह से न्यू होराइजन्स ओपन फॉर अ किड्स माइंड। तो आप जरूर व्यूअर्स टेक केयर ऑफ दिस, एंड टू ऑल द पेरेंट्स मेक योर चाइल्ड लर्न दिस। So Smita, I think we can now go on the project part. मतलब आप एक छोटा डिवाइस, सिंपल डिवाइस हमको दिखाने वाले हैं फॉर यंगर किड्स, लाइक कि बेसिक उनको अगर स्टार्ट करना है तो ऐसा कौन सा डिवाइस या स्मॉल प्रोजेक्ट बना सकते हैं इल्यूजन के लिए। सो वी कैन स्टार्ट विद दैट, आई थिंक। यस, नेहा, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। 2018 में मैंने विंडमिल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया का चिल्ड्रंस का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारा स्टॉल लगाने की। और हमारे साथ ये चैलेंज था कि हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम बच्चों के लिए ऐसा क्या करें जो उनको इंटरेस्टिंग हो। ओके, तो हमने मैं और मेरी टीम ने बैठ के बहुत कुछ रिसर्च किया, एंड देन वी थॉट कि हम कुछ ऐसा सिंपल बनाए जो कोई भी बच्चा बना सकता है। उसके लिए एनिमेशन में बहुत सारे चीजों की जरूरत ना पड़े, सिंपल चीजों से मतलब हम कर सके। तो देयर इज अ device which was used in 19th century, which was actually made in 19th century, और वो पेपर पे बनता है थ्रेड के हेल्प से, जिसको आप बेंड करिए तो उसमें इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो हमने सोचा कि बेंड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है तो बहुत अच्छा, पर वो छोटे बच्चे नहीं कर सकते। और हमें कुछ ऐसा बनाना था जो 4 साल का, 5 साल का बच्चा भी कर सके।
तो हमने थोड़ा इनोवेशन किया और हमने उसको और सिंप्लीफाई किया। सो आई जस्ट शो यू कि हमको क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए। तो सिंपली हमको ड्राइंग पेपर चाहिए, थिक ड्राइंग पेपर, और उसको राउंड कट कर लेना है। उसके दो शेप्स चाहिए सेम पेपर के, आगे और पीछे के लिए। थिक कार्डबोर्ड ले सकते हैं जो थोड़ा सा थिक हो, इट शुड नॉट बी लाइक सिंपल पेपर, थोड़ा थिक होना चाहिए। आप कलर पेपर भी ले सकते हो, बट आगे पीछे आपको ये स्टिक करने के लिए दो पेपर चाहिए। ओके, क्योंकि हम इन दोनों पे मोशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो आई नीड पेपर। तो आप अपनी ड्राइंग की भी बुक से कंपास के हेल्प से आप राउंड क्रिएट करके आप कट करके रख सकते हो। और दूसरा, आपके घर में ये स्टिक्स होती है, मोस्टली सबके घर में मिल जाती है। ओके, जो हम बेसिकली बारबेक्यू के लिए या ऐसे सिंपल चीजों के लिए या यूज करते हैं। तो हमने ये यूज किया और हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक सिंपल एनिमेशन डिवाइस का, जिसपे हम सिंपली समझा सके कि कैसे मूवमेंट होता है, कैसे आप एनिमेशन देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। I'm excited. Yes, let's start. Yes. You can be as much as creative you want. Okay? आप सिंपल ड्राइंग भी कर सकते हो या फिर आप उसको कलर करके बहुत सारे ब्यूटीफुल डिजाइन्स भी बना सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा मैंने ये बनाया है। मैंने इसमें ये सिंपल सी बर्ड बनाई है, यू कैन नोटिस। ओके, तो ऐसे बर्ड बना सकते हैं। और इसके बैक पे जो पेपर है उस पे हमने यहाँ पे उस ब्रांच बनाई है। तो बेसिकली जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इट शोज कि बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ओके, yes, yeah, can you see? yes, it's easy to make for the kids. Yes, and interesting. तो ये 4 साल का बच्चा भी अपने पेरेंट्स के हेल्प के साथ में बना सकता है। और ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हम जब इसको मूव करते हैं तो आप देखो इसमें बहुत सारी इमेजेस दिखती है और ऐसा लगता है कि एक पिक्चर जैसा कुछ चल रहा है सामने। है ना, एक विजुअल चल रहा है जिसमें कि बर्ड है वो ब्रांच पे दिख रही है। तो हमने ये इल्यूजन क्रिएट किया इस सिंपल एनिमेशन डिवाइस में। ओके, ऐसे हमारे गांव में और सब जगह पे ऐसे बच्चे चक्री लेके घूमते हैं, उसको बोलते हैं चक्री। तो वो हर ऐसे फेस्टिवल्स में मिलती है जो बच्चे लेके खेलते रहते हैं और घुमाते रहते हैं। तो हमने वैसे ही चक्री पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन बना दिया है। तो ये हमारा डिवाइस है। ओके, तो मैं एक सिंपल सा बना के आपको दिखाती हूँ। Yes. Now, when you have got this two paper, इसमें क्या करना है, दोनों को सामने रखें। ओके, और बच्चे जैसे भी डिजाइन बनाना चाहें, जो भी मैजिक वो क्रिएट करना चाहें, सपोज उनको एक आइसक्रीम कोन बनानी है तो एक में उनको एम्प्टी आइसक्रीम कोन बनानी है और दूसरे में ऊपर आइसक्रीम भी बनानी है। तो उनको एक्चुअली दो सेम ड्राइंग करनी है विथ डिफरेंट एक्शन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आईज का बनाती हूँ। तो ये मैंने पेपर पे मैं क्या कर रही हूँ, एक आई का डिजाइन बना रही हूँ। तो ये आई का डिजाइन है। सेम डिजाइन मैं ये ऊपर पेपर पे भी बनाऊंगी। ओके, अगर आप डिजाइन में ड्राइंग में नहीं अच्छे हो तो आप ट्रेसिंग कर सकते हो। ओके, या फिर आप पेंसिल यूज करके आप इसको एक को दूसरे पे रखो और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके ट्रेस कर दो, बिकॉज हमको दोनों पे सेम डिजाइन चाहिए। This is a good idea. This is a good idea. Yeah. Yes. तो बच्चे ट्रेसिंग इजीली कर पाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक शेप हो गया जनरेट, तो मैं उसी पे ट्रेस कर लूंगी। सो इसमें हमने ट्राई किया कि हम जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकें उतना बच्चे इसको क्रिएट करके एंजॉय कर पाएंगे। और उस इवेंट में हमारे साथ चैलेंज ये था कि हमें ऑन द स्पॉट बच्चों को ये करके दिखाना था और उनको भी ऑन द स्पॉट ही बनाना था। तो ये डिवाइस बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये दोनों मैंने आई का बना लिया है। ओके, द बोथ। एक में आईज का मैंने लिड ऊपर दिखाया है ओपन,
ओके, और ये जस्ट आईज है, तो एक में ओपन रहेगी आईज और एक में क्लोज रहेगी। ओके, तो क्लोज आई में आप यहां से इसको हाफ क्लोज कर दो। ओके, कैन जस्ट क्लोज दिस आईज फ्रॉम हियर। तो ऐसी ड्राइंग करना है कि आपको आईज क्लोज दिखे। ठीक है, ओके, कैन डू लाइक दिस and we'll just make it look like this. Okay, ओके, आप थोड़ा सा इसमें डिजाइन कर सकते हो। and in this one now little part I am showing that eyes is half closed. Okay, तो इनको हमने जैसे फ्रंट में रखा है वैसे ही हम बैक में ऐसे स्टिक करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टिक इट लाइक दिस। ओके, गॉट इट। इसके बीच में हम एक ये जो स्टिक हमने ली है वो प्लेस करेंगे। ओके, एंड विल पुट सम ग्लू स्टिक एंड उसके ऊपर हमको इसको स्टिक करेंगे। आई एम जस्ट मेकिंग अ टाइनी पॉट। ओके, ये हमने एक में पॉट बनाया और पॉट के ऊपर हम ये पेपर रख लेते हैं, सो हमें ट्रांसपेरेंट ना थोड़ा थोड़ा पॉट पीछे से दिख रहा है। यू कैन इफ यू नोटिस। ओके, यस, तो इसके वो लाइंस को समझते हुए ना मैं इसके अंदर एक फिश बना रही हूँ। मेक अ नाइस फिश द वे यू वांट। बस हमको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हम जो मूवमेंट बनाएंगे, ओके, मोशन जो बनाएंगे वो हमारा प्रॉपर हो। फाइन, इसको जस्ट अपोजिट प्लेसिंग करना है। करेक्ट, करेक्ट, गॉट इट। ओके, सो फिश हैज टू बी इनसाइड द पॉट। ठीक है, आप उसको ऐसे सेट कर लो तो आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर है कि नहीं। लेट मी चेक इट, या इट्स फाइन। और इसके बीच में हम ये अपना स्टिक रखेंगे या और थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगाएंगे। तो लेट मी अप्लाई ग्लू स्टिक ऑन द सेंटर ऑफ दिस पॉट। पॉट नीचे साइड में है और मैंने इसको स्टिक किया यहाँ पे। वेरी नाइस। ओके, आपको चाहिए तो आप ऐसे गूगली आईज भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आईज बनाया है उसमें आपको ओपन या क्लोज में बनाना है, ओपन आई में, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग यू कैन यूज दिस गूगली आईज ऑल्सो। इट कैन बी लॉट ऑफ फन। सो वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट you can just decorate, design. The only thing you have to take care is कि आप जो एक्शन क्रिएट कर रहे हो वो आपका रिवर्स होना चाहिए। अभी फिश हम देखें तो फिश पॉट में नहीं है, फिश जस्ट ऐसे प्लेन प्लेस पे है और बैक साइड में पॉट है। सो इट्स लाइक बच्चों को एक मैजिक जैसा फील होता है एंड वंडर कि एनिमेशन इसमें कैसे हुआ, कैसे इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये उनके लिए बहुत वंडरिंग होता है और वो जो फर्स्ट क्यूरियोसिटी उनके माइंड में आती है कि ये कैसे हो रहा है, ओके, वहां से एक्चुअली उनको एनिमेशन सीखने की क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। आई एग्री। तब वो फिर समझने की कोशिश करते हैं। जब उनके स्कूल में सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं या कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो उनको ये समझ में आता है, ओ हमने एनिमेशन सीखा है, हमने एनिमेशन किया है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका इफेक्ट कैसा है। ये थोड़ा ड्राई हो गया है। ओके, आई जस्ट प्ले इट नाउ। रेडी फॉर द मैजिक? रेडी। ओके, can you see? Yes, 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 yes. It is inside. Yes. Yeah. अभी इसमें जो हमने पॉट बनाया है उसमें हम वाटर भी फिल कर सकते हैं थोड़ा और एनहांस करने के लिए उसको। यस, यस, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। मैं वाटर थोड़ा सा फिल कर दे रही हूँ। ओके, बैक साइड में आई कैन इवन क्रिएट बबल्स। एक बार हमने ड्रॉ कर लिया ये, तो हम बबल्स भी जनरेट कर सकते हैं थोड़े से। फाइन, अभी हम इसको प्ले करेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ यू सी,
तो मैंने ये बबल्स बनाए हैं Yes. और पीछे साइड में पानी भी है पॉट में. अभी मैं इसको प्ले करूंगी. तो फिशेज इज इनसाइड द पॉट एंड पानी के अंदर वो बबल्स जनरेट कर रही है. Yes. Very interesting. Cute it is. And they, keep on playing, keep on playing. They keep on checking कि अरे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है. हाँ. और नेहा मैं बताऊं, ये जो हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था विंडमिल में, उसमें हमने अराउंड 2000 चिल्ड्रन को 2 दिन में ये डिवाइस बनाना बताया एंड दे वर सो हैप्पी. और मुझे मतलब हमने 2-4 एग्जांपल्स उनको बताए थे. डिफरेंट चिल्ड्रन मेड डिफरेंट डिजाइन्स. मतलब एक बच्चे ने, आई रिमेम्बर ही मेड अ वॉल्केनो माउंटेन एंड जब ही इज प्लेइंग दैट तो वॉल्केनो इज इरेप्टिंग. That was something. वो उनका एक इमेजिनेशन था जो वो बाहर आया, तो ये एक्चुअली ऐसी चीज है कि बच्चों को सिखानी चाहिए और बहुत मजा आता है उनको ये करने में. तो आई होप तुम्हारे वी ब्लॉग क्रिएटिव स्पेस के थ्रू भी वो ये लर्न करेंगे और इसको अपने सिबलिंग्स को और फ्रेंड्स को भी बताएंगे और उनको मजा आएगा. Yeah. It is so interesting. It's putting a smile on my face only. कि ये मैं कभी ना कभी मैं ही बना दूंगी ये. You can बच्चे लोग अगर अगर आपकी बर्थडे पार्टी भी है, आप ये बना के गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स. तो आप नाइस एक्टिविटी. इट्स वेरी नाइस एक्टिविटी. बच्चे खुद कर सकते हैं, एक गेम टाइप का हो जाता है. पर वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो लर्न करते हैं कि इसमें मोशन कैसे आ रहा है, मूवमेंट कैसे आ रहा है. ये फर्स्ट ऐसा डिवाइस था जो एनिमेशन के मूवमेंट्स को जो इल्यूजन है, परसिस्टेंस ऑफ विजन को एक्सप्लेन करता है इन अ सिंपल वे. Yes, thank you so much, Smita, for showing us this activity. I'm sure इससे curiosity बहुत बड़ी होगी viewers की, जिनके parents है, बच्चे हैं जो देख रहे हैं. So thank you for that. And anything else, Smita, that I must have missed on this part that you would like to share? I believe कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपको बहुत सारा कॉस्ट नहीं देना पड़े. मुझे लगता है एजुकेशन ऐसे ही स्प्रेड होनी चाहिए जैसे राइट नाउ नेहा और मैं कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी कोई भी आइडिया है वो अच्छे से एक दूसरे को बताएं, शेयर करें. आपको जो चीजें आती हैं उसको शेयर करें. शेयर करने से नॉलेज कम नहीं होता और वो बढ़ता जाता है. तो जिससे भी पॉसिबल है शेयर करें, नॉलेज बढ़ाएं. मेरा कॉन्सेप्ट है लर्न, कंट्रीब्यूट एंड ग्रो. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं खुद बहुत कुछ लर्न करती हूँ और जो मैं लर्न करती हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ और इससे मुझे लगता है कि मैं ग्रो कर रही हूँ. तो ये मैं बिलीव करूंगी कि हर कोई अपनाए. और एजुकेशन अनलिमिटेड है, नॉलेज अनलिमिटेड है. यू कैन कीप ऑन स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड आई थिंक दैट्स बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. Yes, I completely agree. And guys, if you have any questions, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. अगर आपको और जानकारी चाहिए एनिमेशन के बारे में, स्पेशली फॉर द किड्स, तो आप पूछ सकते. बहुत सारे एक्टिविटीज है जो स्मिता करती है. So definitely we'll get in touch with her. And Smita, thank you so much for this lovely session, lovely content, and creating this awareness, the first step for any child or anybody who wants to learn animation. So thank you so much. And as a thank you gesture, I'm going to sketch you. I hope you like it. Oh my God, great. It's my way of saying thank you. I hope I do justice to your pretty face. So thank you once again. Yeah, thank you, Neha, again, and my best wishes. And carry on, keep on doing new videos and let the people learn from your creative space. Yes. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. Bye.